پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی، نہ متانت رہ گیا، نہ وقار رہ گیا، نہ علمی دوستی رہ گئی۔ اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھینگا مستی کے اور سوائے ہول ہپار کے، سوائے موج مستی کے، سوائے گناہوں کے ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ ایک دور تھا ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کی زبان پر تلاوت قرآن اور نعت رسول دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے جوانی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے، غرض کے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اقبال جیسا مفکر اپنی قوم کے جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر! عقاب کیا ہوتا ہے؟ بس اسی پہ گفتگو کروں، مجھے عقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخ کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، یعنی عقاب ہوں۔ آخر عقاب میں کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ناب نے اپنے آپ کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں؟ اقبال نے بڑی واضح نصیحتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو عقاب سے تشبیہ دے کر کے بتایا۔ نمبر 1، عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، عقاب کی خصوصیت ہے کہ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے۔ عقاب کے ساتھ کوئی چیل نہیں اڑ پاتی، کوئی کوا نہیں اڑ پاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ عقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اقبال پیغام دے رہے ہیں، مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں، اے میرے مسلم جوان تو بھی عقاب کی طرح ہے، تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان، کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز نہ کر سکے۔ تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جائے۔ عقاب کی طرح اڑ، تیری شان یہ ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا عقاب صرف عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے، عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری بے نشست برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول
रसूल अल्लाह के उम्मती होकर शराबियों के साथ कैसे बैठते हो, जुआरियों के साथ कैसे बैठते हो, सूदखोरों के साथ कैसे बैठते हो। मैं उनको काफिरों में नहीं गिन रहा हूं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, क्या रसूल अल्लाह का फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के साथ दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगाने वालों, जरा सोचो तो सही, तुम हीरो से मोहब्बत कर रहे हो, फला फला खान साहिबों से और फला फला नचनियों से मोहब्बत कर रहे हो। सोचो आका ने क्या फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, क़यामत के दिन स्क्रीन पर आकर ज़िना करने वालों के साथ तुम उठने के लिए तैयार हो? बताओ। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, गौसे आजम के नाम पे झूमने वालों। अभी अजमत भाई नात शरीफ पढ़ रहे थे, मनक़बत पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था क्या कि जो कौम गौस पाक गरीब नवाज के नाम पर, ताजुश शरिया के नाम पे, आला हजरत के नाम पे इतना झूमती हो इमाम हुसैन के नाम पे, उस कौम को सुधारना तो मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम झूमने और चूमने को तो तैयार है, मेरी कौम मैदान अमल में आने के लिए कब तैयार है? आप मुझे बताएं, मुझे बताएं। सिर्फ झूम और चूम कर इनकलाब नहीं आ सकता जब तक कि हम मैदान अमल में ना आए। रसूलुल्लाह ने सहाबे किराम को अमल के मैदान में पुख्ता फरमाया था। वो कौम जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर सकती थी, उस कौम को अल्लाह की पहचान अता की थी, उस कौम को खुदा की मारिफत अता की थी। जो लोग अल्लाह अकबर खुद रास्ते पर न थे, मेरे नबी ने उनको हादी और महदी बनाया। कहने वाले ने कहा था, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है, ये हजरत ईसा का मौजज़ा है। मेरे नबी ने मुर्दों को मसीहा कर दिया है, इसलिए कि जिंदा करना ईसा का काम है, लेकिन मुर्दा भी मुर्दा जिंदा करने लग जाए, इस मंजिल पे मुर्दे को पहुंचाना ये मुस्तफा का काम है। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दे मसीहा हो गए। ये मुस्तफा इतनी मुकद्दस खातून है कि जालिम ने इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने कुरान में उनकी तहारत को बयान फरमाया, उनकी पाकीज़गी और इफ़्फ़त को बयान फरमाया। उस अम्मा आयशा पाक का हाल ये, एक मर्तबा रेशम का पर्दा, रेशमी पर्दा घर की दीवार पे लटकाया, रेशमी पर्दा घर की दीवार पे लटकाया। हुजूर तशरीफ लाए तो देखा सैयदा आयशा के घर के हुजरे में रेशम के पर्दे दीवार पे लटके हैं। हुजूर घर में नहीं गए, चेहरा फेर लिया। तवज्जो करें, गौर फरमाएं। अगर आपको ये लगता है कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर मुझसे कैसे चेहरा फेर सकते हैं, तो आपसे पूछता हूँ, आप कितने भी चहीते और हम कितने भी चहीते हैं, अम्मा आयशा पाक की तरह हमारे लिए तो चाहत उतनी नहीं होगी ना। वो महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन है। जब वो पर्दा दीवार को लगा ले तो हुजूर वहां से चेहरा फेर करके वापस हो जाते हैं। दूसरी हदीस, धड़कते दिल से सुनना। अगर हदीस नहीं होती तो हिम्मत नहीं होती ये बोलने की जो बोलने जा रहे हैं। एक मर्तबा अम्मा सैयदों की माँ, सैयदा-ए कायनात, मखदूमा-ए कायनात, हुजूर की औलाद में सबसे ज्यादा हुजूर ने किसको चाहा है तो वो सैयदा फातिमा की जात है। उनके आने पे हुजूर खड़े हुए हैं और एक दो मर्तबा नहीं, बार बार खड़े हुए। सैयदा आयशा पाक फरमाती है कि मैंने जब भी देखा कि फातिमा आ रही है तो हुजूर उठकर उनके लिए और सिर्फ खड़े नहीं हुए, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे खुद उनको बिठाया। और उनको बिठाने के बाद क्या फरमाया, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हुजूर अपने माँ बाप जिस पे कुर्बान करे वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। और फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम,
بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدہ کی شان یہ ہے، بلکہ ہمارے اسی دور کے ایک اچھے شاعر نے ایک اچھا شعر کہا ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کر، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا پورا میدان، کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ سنیو، کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی۔ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا علی۔ جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام۔ میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں، اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمۃ الزہرا کو۔ جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور، یہ ہے سیدہ کائنات، رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ۔ یہ شان ہے سیدہ کی۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابی ہاں ہے، تو میری ماں کی طرح، یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمنہ کو، لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ الزہرا۔ یہ شان ہے سید۔ لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ۔ پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی۔ ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے، حضور کی غیرت، بس بات پوری ہوتی ہے، حضور کی غیرت۔ سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے، سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے۔ عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز بالکل۔ تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن۔ اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر لیا اللہ، اور منہ پھیر کر چلے گئے۔ توجہ کرنا سنیو، مائیں اور بہنیں تو آپ کی میں، کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا، یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا، ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور نظر پھیر کر، چہرہ پھیر کر جا، حرام کام، سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا، بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا۔ مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا، سیدہ رو پڑی، بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی، اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے۔ ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا۔ سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا
से उन्हीं को कहा था कि मुझसे पहले आकर के तुम ही मुलाकात करोगी। उस शहजादी जिसके लिए खड़े होते थे, आज उन्होंने सोने के कंगन पहनाए, शायान शान नहीं थे, बस चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर करके हुजूर वापस हो गए। सैयदा ने फौरन सोने के कंगन, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाए, सोने के कंगन उतार कर हजरत बिलाल को दिया, जाओ बेच करके इसको मदीने के गरीबों में बांट दो। थोड़ी देर के बाद हुजूर फिर तशरीफ लाए तो कंगन नहीं थे। बाबा क्यों आप वापस चले गए? चेहरा फेर के फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि मेरी शहजादी मेरे नक्श कदम पर हो। नबी के घर वालों को कब जेब देता है कि वो सोना और चांदी पहने, इसलिए वापस। अब आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी चहीती हस्तियों से हराम काम नहीं हुआ, नाजायज काम नहीं हुआ, खता नहीं हुई, गुनाह नहीं हुआ, सिर्फ शायान शान काम न था, तो हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया। जब इतने चहीतों से इतनी नजाकत है मिजाज में कि एक काम शायान शान नहीं होता तो हुजूर रुख फेर लेते हैं, तो बताओ मुसलमानों, आज अपनी रातें कैसी गुजरती है? जो फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता हो, जो जुआ खेलता हो, जो शराब पीता हो, जो औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता हो, फिर हुजूर उसको प्यार से कैसे देखते होंगे? क्या उससे भी चेहरा न फेर लेते होंगे? और ये तो दुनिया है, दुनिया, ये तो दुनिया है। यहां तो मौज मस्ती में गुजार रहे हो, जब कब्र में जाओगे, कब्र में जाओगे मेरे भाई, और जब कब्र में जाओगे और अकेले दफना दिए जाओगे, कितनी बेबसी और बेकसी होती है ना। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े खिताबात और अलकाबात पाने वाले, जिनके लिए जलसों में नारे लगते थे, जिनके लिए जलसों में तालियां बजती थी, जिनके लिए जलसों में थालियां बजती थी, जिनके लिए बड़े बड़ी डिग्रियों के ऐलानात होते थे, जब मरते हैं तो जनाजे में कितने बेकस और बेबस नजर आते हैं। अब बताओ, कब्र में रखे गए, सबने मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया, दबा करके चले गए। इंसान बेबसी में सोचता है, भाई तू भी गया, बाप तू भी गया, अब्बा तुम भी गए, बेटो तुम भी गए, यार दोस्त, देखो कितनी बेवफा दुनिया है। जब सब छोड़कर चले जाएंगे ना, तो वो जाने वफा तशरीफ लाएंगे कब्र में। और मेरे इमाम कहते हैं, जब हुजूर कब्र में आएंगे तो कैफियत क्या होगी? इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, अकेले हुजूर कब्र में बचाने के लिए आ गए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है। अब मुसलमानों सोचो, जब सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कड़े देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, सैयदा आयशा के घर में जब वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, अब बताओ हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया, और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए, बताओ क्या हुआ? किसको आवाज दोगे? किसको पुकारोगे? यहाँ जो धितिंग आपकी चल रही है, वहां कोई धितिंग चलेगी? न वहां किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी। वहां तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है? राह पुरखार है, क्या होना है? पांव अफगार है, क्या होना है? हम तो जब सुनते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं। कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे ना हंजारों पर नजर पड़ी, और अल्लाह न करे, हजार बार न करे, उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। बहुत नाजुक है उनकी गैरत, अगर मुँह फेर कर कब्र से चले गए तो कितनी बर्बादी होगी, कितनी
तबाही होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम हुजूर का सामना कब्र में कैसे करेंगे? क्या गुनाह नहीं किया, क्या जुर्म नहीं किया, क्या पाप नहीं किया, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो महबूब सुबहानी थे, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर के दरबार में उनकी खड़े होने की हिम्मत न हुई, बस खड़े होके सलाम किया और सलाम करके हट गए ये कहते हुए, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर के सामने खड़े होने की गौस पाक ने हिम्मत नहीं की। पता नहीं कहाँ तक ये बात दुरुस्त है। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन ने हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में मुझे बताया कि जब मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि सरकार की सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, तो मुफ्ती आजम ने कहा हमने भी सुना है कि बहुत खूबसूरत और नूरानी जालियां हैं। तो किसी ने कहा हुजूर आप तो दो मर्तबा मदीना शरीफ गए और आप कहते हैं कि हमने भी सुना है और आप महीनों महीनों मदीने मुनव्वरा रहे। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया सुनहरी जालियों के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वहां मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे, गौसे पाक वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये अदब है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था इकबाल तुम जर्मनी तक जाते हो, बरतानिया तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तो इकबाल ने कहा जा सकता हूँ, जाने का शौक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं पाता क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, अब बताओ जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है कि हुजूर की नजरे करम के मुस्तहिक बनना चाहते हो या हुजूर अलैहिस्सलाम मुंह फेर ले, किस पे राजी हो? आपकी मर्जी है। अगर ये चाहते हो कि हुजूर मुंह फेर ले, फजर में सोते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ताश के पत्ते खेलते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। कानों में एयरफोन लगा के गाने सुनते रहिए, कुछ नहीं कहेंगे। जो मर्जी कर लो। कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है। ये तसव्वुफ की अव्वलीन किताब है, अव्वलीन किताब है तसव्वुफ की। शेख अबू तालिब मक्की कुतुल कुलूब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। यानी कि जो आशिक होगा वो कभी रात भर सो नहीं सकता। वो या तो इबादत करेगा, या तो वो दुरूद पढ़ेगा, या तो वो कुरान की तिलावत करेगा, या तो हुजूर के लिए रोएगा, या तो हुजूर के लिए आंसू बहाएगा। अब मुझे बताओ, आका खुद फरमा रहे जो इश्क रसूल का दावा करे पूरी रात सोए वो झूठा है। फजर की नमाज रात को नहीं होती, उलमा से पूछो सुबह को होती है। जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन होगा? आप कहते हैं मौलाना तलवारें चल रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हैं हुजूर जिसको झूठा कह दे, मैं नहीं, मेरी औकात क्या? मैं तो तुम सब में ज्यादा गिरा बड़ा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं हुजूर जिसको झूठा कह दे, फजर में क्यों नहीं उठते? नींद नहीं खुलती। ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुलती है, फ्लाइट पकड़ने के लिए नींद खुलती है, 6000 और 8000 की नौकरी पे जाने के लिए नींद खुलती है, और हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए नींद नहीं खुलती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मेरे अजीज 3 बजे तक जलसे में जग सकते हैं, मगर फजर की नमाज में 10 बजे उठ नहीं सकते। जिस कौम को हुजूर झूठा कह के उससे मुंह फेर ले, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इस तरह के एक नहीं 1000 जलसे कर लो, कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो हुजूर की नजर चाहिए। अरे इंसान तो इंसान है। अगर हुजूर पहाड़ पे प्यार की नजर डाल दे तो वो पहाड़ भी जन्नती हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ, ये जन्नत में जाए। पत्थर को जन्नती बना दे प्यार की नजर डालकर। सुतून हन्नाना को, एक दरख्त के सूखे तने को जन्नती बना दे एक नजर। उनकी नजर की बात है, लेकिन याद रखना जिस पे नजर पड़ती है
جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا۔ میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی دے دوں، قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے؟ ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ نگاہ رسول سے محروم تو نہیں، سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر آپ جانے، اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے، ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے۔ باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہیں لیکن اگر میں گفتگو طویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہیں شاعر صاحب، وہ محروم رہ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے 10 منٹ کی تقریر بڑھ جانے سے کسی کا حق میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، اس لیے کہ اچھی گفتگو کے لیے 10 منٹ ہی کافی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا اگر حضرت آ گئے نا، حضرت تشریف لائے تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، میں جانتا ہوں نہیں ہو پائے گا، مجمع بکھرے گا، وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، عشق کے حوالے سے اور حضور کی نظر ہی کے حوالے سے ایک بات رکھ دوں۔ اللہ ہوگا جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا، توجہ کرو، جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا، پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس۔ اب یہاں بہت نازک بات آتی ہے، حضور کی خوشی کا سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، توجہ سے سن، اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ میری بات پہ دھیان دے دیں بس۔ آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا، میں نے چلے 10 منٹ بولتا ہوں لیکن سن لے غور سے۔ میں پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں، میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں۔ آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے اور وہ ترتیب سے بولتا ہے، میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے، میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں، پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے۔ میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں، لیکن یہاں یاد نہیں، یاد اللہ بس کرم فرمائے حال پر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو۔ یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا۔ اب یہاں تھوڑا غور کر لو، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے، ماں کا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کا دل دکھائے، بتاؤ، اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی سیریلیں گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، فحش گانے سن رہے ہو، عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو، مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، سنیوں، ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور صرف زندہ نہیں ہے، صرف اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ سوچو قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو، مرثیے پڑھ رہے ہو، ماتم کنا ہو، جو قوم
रसूल अल्लाह को दिल दुखाए, हुजूर को कब्र अनवर में अजियत पहुंचाए, उस कौम को खुशी कैसे मिले? मैंने कल एक जुमला कहा था पड़ोस की बस्ती में कि अगर दौर में फिरौन की हुकूमत ना भी हो, जमाने में सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो, तो भी तुम ऐसे कुचले जाओगे जिसके तुम मुस्तहिक हो, जिसके मुस्तहिक हो। क्योंकि जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, हुजूर तो सब्र कर लेंगे, मगर अल्लाह कितना गय्यूर है महबूब के मामले, फिर वो तो सजा देगा। भाई सिर्फ वली की तौहीन करने पर, वली का दिल दुखाने पे अल्लाह जंग का ऐलान कर दे, तो जो कौम एक दिन में हजारों मर्तबा नबी का दिल दुखाए कलमा पढ़ के, आप ये जो तलवारें हैं, ये जो मुसीबतें हैं, हाथ किसी का भी हो, मुसल्लत खुदा की की हुई है, ये अल्लाह की मुसल्लत की हुई है। जानते हैं हलाकू और चंगेज खान ने जब कौम पापी हुई ना, तो मुसलमानों की खोपड़ियों में उन्होंने शराबें पी, मुसलमानों की खोपड़ियों में शराबें पी गई। कब? जब मुसलमान जानी हुआ, जब मुसलमान पापी हुआ, जब मुसलमान मुजरिम हुआ। तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो, वरना ये जो हालात है बड़े मुख्तसर है, इसके बाद जो हालात आएंगे कोई पनाह नहीं देगा, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इकबाल ने एक सदी पहले रोना रोते कहा था, न संभलोगे तो जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो आज क्या कर रहा था, जो आशिक होता है ना सच्चा, वो नबी के दिल का ख्याल कर, वहां जन्नत और जहन्नम की फिर उतनी फिक्र नहीं होती, वहां पर तो असल महबूब दिल का ख्याल होता है। इस सिलसिले में एक रिवायत आई है किताबुत तव्वाबीन के अंदर लिखी हुई है, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। एक जवान, उसका नाम था इब्ने अब्दुल रहमान, मैं नाम नहीं लेता, इब्ने वल्दियत से मैं पेश करता हूँ। इब्ने अब्दुल रहमान उस जवान का नाम था। एक मर्तबा वो जवान रास्ते से किसी काम से हुजूर ने भेजा था, गुजर रहे थे, एक नहाती हुई औरत पर उनकी नजर पड़े, उस जवान की, इब्ने अब्दुल रहमान की नजर की, गुस्ल कर, अब औरत गुस्ल कर रही हो तो नजर पड़े तो क्या देखा होगा इनसे। लेकिन हदीस पाक है, अगर नाजायज मंजर पर नजर पड़े और फौरन फेर लो तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, बल्कि हदीस है अगर औरत पर नजर पड़े और आदमी ये सोच कर कि अल्लाह देख रहा है फौरन फेर ले, तो अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नत नईम का मुस्तहिक, बेहिसाब उसका ठिकाना जन्नत नईम है, क्योंकि वो ये सोच के नजर फेर रहा है कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन इश्क वालों की तो बात ही कुछ और है, उनके दिल की वारदात कुछ और है, उनके कल्बी मामलात कुछ और है। जैसे इब्ने अब्दुल रहमान की नजर औरत पे पड़ी, फौरन फेर लिया नजर, और नजर फेरने के बाद आसमान की तरफ नजर उठाई, मौला मुझसे क्या हो गया। अब इश्क देखो, देखिए इश्क जो होता है कानून के ऊपर होता है, कानून अलग बात करता है, इश्क अलग बात करता है ना, वो कानून के नीचे नहीं बल्कि कानून से ऊपर होता है इश्क। यानी कानून ने कह दिया नजर फेर लो तो सवाब मिलेगा, लेकिन इश्क कह रहा है जिस नजर से यार को देखता हूं, अगर उस नजर से मैंने अगियार को देख लिया तो महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा। नजर उठाई, मौला मुझसे क्या हो गया, मैंने किसको देख लिया, जिस चेहरे से रुके बद, जिस आंखों से रुके बद्दुहा देखता हूँ, जुल्फे वल्लैल देखता हूँ, माज़ाक चश्म देखता हूँ, वन नज्म दांत देखता हूँ, और गुले कुद्स की पंखड़ियां अल्लाह अकबर उनके लम्हाए अक़दस को देखता हूँ। आज मैंने क्या, मुझ पे मैंने क्या देख लिया। क्या कहते हैं पता है, मौला मुझे माफ कर दे, या जो तू चाहे सजा दे, अंदाज आशिकों का देखे, तू मुझे माफ कर दे या जो चाहे सजा दे दे, लेकिन एक अर्जी है मौला, इस बात की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर उनको खबर हो गई तो उनका दिल टूटेगा। मेरे नजदीक हर सजा सहना आसान है, लेकिन महबूब का दिल टूट जाए मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। सोचो, एक औरत को नहाते हुए अचानक नजर पड़ गई, चेहरा फेर कर, ये गैरत है। रात रात भर गंदी फिल्में देखने वालों, गंदी पिक्चरें देखने वालों, नंगी पिक्चरें देखने वालों, कहां से इश्क रसूल का दावा करना हमें जिद देता है। बताओ, सोचो, गौर करो, कितनी बुलंदी पर इस्लाम ले गया और हम कितनी पस्ती में चले गए। वो जवान रात
दिन कह रहा है। अब जिस काम से उस जवान को भेजा गया था, वो जवान वापस पलट कर हुजूर की बारगाह में नहीं गया, बल्कि एक जंगल में वो जवान चला गया इब्न अब्दुर रहमान, और रात और दिन कहता है अल्लाह मुझे या माफ कर दे या मुझे कोई सजा दे दे, बस मेरे महबूब को इसकी खबर, दीवानगी है, मेरे महबूब को इसकी खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 40 दिन इसी में गुजर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बार बार पूछा इब्न अब्दुर रहमान नहीं दिखता, कहाँ गया? सहाबा कहते हुजूर पता नहीं, कोई खबर ही नहीं उसकी। एक दिन मेरे आका ने 40 दिन गुजरने के बाद फरमाया ए उमर और ए सलमान फारसी, तुम दोनों जाओ और जा करके फला जंगल में बैठा हुआ है वो और रो रहा है, उसको मेरे पास लेकर के आओ। जब सलमान फारसी और फारूक आजम गए तो देखा एक चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है। उससे पूछा क्या हमारा भाई इब्न अब्दुर रहमान तुम्हें दिखा है? तो वो कहता है तुम्हारा भाई कौन है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ एक जवान है, उससे कोई गलती हो गई और वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जंगल में जब वो रोता है तो पूरा जंगल सोगवार हो जाता है। फारूक आजम ने कहा सलमान मिल गए इब्न अब्दुर रहमान। चरवाहे से पूछा कहाँ है वो? तो चरवाहे ने कहा मैं नहीं जानता कहाँ है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो उसके रोने की आवाज आएगी। रात हुई, रात ने अपनी सियाह चादर को जब जंगल पर डाल दिया और सियाह चादर जब वो रात की तन गई जंगल पर, तो क्या हुआ, अचानक रोने की आवाज आई, अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या मुझे सजा दे या माफ कर दे, मगर मेरी गलती, मेरे गुनाह की इत्तला मेरे महबूब को मत होने देना वरना उनका दिल टूटेगा। पहुंचे, पूछा इब्न अब्दुर रहमान क्या हाल किया तूने, चल अल्लाह के रसूल बुलाते। इब्न अब्दुर रहमान ने कहा उमर मेरे भाई हुजूर ने बुलाया है, इनकार नहीं करता, लेकिन एक एहसान कर याद रखूंगा। क्या? हुजूर का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा काम हो गया मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। जब नमाज पढ़ा रहे हो ना हुजूर, उस वक्त तो मुझे लेकर के चलना, बस हाजिरी हो जाएगी, सामना नहीं होगा। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा। दोनों सहारा देखे, न 40 दिन हो गए खाया है न पिया है न सोए, दीवानों की तरह कैफियत है, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें खुश्क हो गई, जिस्म हल्का हो गया। ऐसे आलम में जब ले गए तो हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाह के रसूल की आवाज कानों में पहुंची, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, पूछा कहाँ इब्न अब्दुर रहमान? साहबा ने कहा हुजूर वो तो बेहोश हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा तो हुजूर के हाथों की ठंडक पाई, होश में आए। होश में आए तो कहा या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं पहुंची ना? अब वो तो आलिमे गैब थे, क्या कहने, लेकिन पर्दे डालने का अंदाज भी क्या था। सरकार ने फरमाया इब्न अब्दुर रहमान क्या हो गया? हुजूर ऐसा कुछ हो गया, अब मेरे जिस्म में खून नहीं है, ऐसा लगता है चूंटियां चल रही है मेरे जिस्म में। आका हुजूर आपका दिल तो नहीं टूटा ना, आपको खबर तो नहीं पहुंची ना मेरे गुनाह की? सरकार ने फरमाया इब्न अब्दुर रहमान मेरे अल्लाह ने मुझे एक ऐसी आयत बताई है, नाजिल फरमाई है, अगर कितना भी बड़ा मुजरिम इसको पढ़ ले तो अल्लाह उसको हर गुनाह से पाक कर देता है। मैं तुझे वो आयत पढ़ा देता हूँ, तू वो आयत पढ़ ले, अल्लाह सब माफ कर देगा। हुजूर ने पढ़ाई, हम भी तसव्वुर में पढ़ ले। आका ने फरमाया पढ़ो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। का ये जो आयत पढ़ेगा वो माफ कर दिया जाता है। लेकिन इब्न अब्दुर रहमान ने कहा मगर आका मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। साहबा से कहा इसको घर ले जाओ, पहुंचाओ घर। 8 दिन हो गए, फिर घर के बाहर नहीं निकले। पूछा कहाँ इब्न अब्दुर रहमान? हुजूर वो मर जाएगा, ना खाता है ना पीता है, बस ये कहता है मुझसे क्या हो गया, मेरे महबूब का दिल तो नहीं दुख गया, उनको ये इत्तला तो नहीं हो गई। हुजूर ने कहा चलो आज चलकर उसको हम कुछ कर देंगे। आका आई, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की पन आई है। आकर के इब्न अब्दुर रहमान के बिस्तर पे बैठ गए और उनसे कहा क्या हाल है? कहा हुजूर हाल बुरा है, आपका दिल तो नहीं टूटा ना, आपको इत्तला तो नहीं हुई ना मेरे गुनाह की? सरकार करीब, कैसे करीब, मेरे करीब ने चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा,
गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बे किया किया होगा। हुजूर ने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, उन्होंने धीरे धीरे सर खिसका कर जमीन पे गिरा लिया। आका ने पूछा, इब्ने अब्दुल रहमान, तूने सर हमारी गोद से क्यों हटाया? सोचो तो सही, क्या मुकद्दर है। हुजूर की नालाइन किसी के सर पे रख दो तो वो बादशाहों से बड़ा हो जाता है। हुजूर जिसका सर अपनी गोद में ले ले, उस जवान का मुकद्दर नहीं, वो तो ना करता जुर्म था, लेकिन इश्क की आवाज थी। जैसे ही सर जमीन पे गिराया, पूछा क्यों गिरा लिया? अर्ज़ की, आका ये पापी आंखें जिस सर में हो, वो सर इस काबिल नहीं है कि आपकी मासूम गोद में रुक सके। हुजूर आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, मैं बहुत पापी हूँ आका। और सर गिरा लिया, सर गिराया, फिर सर रखा, फिर सर गिराया। आका पर वही आई, महबूब तेरे इश्क में इतना रो चुका है ये कि अगर ये पूरी उम्मत के बराबर भी पाप लेकर आए तो भी हम इसे बख्श दें। अल्लाह, आपके दिल का ख्याल करते हुए, आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहा चुका है, अगर ये पूरी उम्मत के बराबर, अव्वलीन और आखिरीन के बराबर भी जराइम लेकर आए तो भी बख्श देंगे, इसके आंसुओं की और तेरे प्यार की वजह से। बस हुजूर ने फरमाया, देखो इसके लिए क्या हुक्म आया। इब्ने अब्दुल रहमान से कहा, इब्ने अब्दुल रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या हुक्म नाजिल किया। इब्ने अब्दुल रहमान सारी ताकत समेट के बैठ गए। क्या कहा मेरे अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा, इश्क रसूल में दिले रसूल का ख्याल करके इतना रो चुका है तू कि अगर सारी कौम के बराबर भी तू जराइम लेकर आए तो भी अल्लाह तुझे बख्श दे। इतना सुनना था। सहाबा मचल गए, अभी खड़ा होगा, अभी चलने लगेगा और अभी हमारे दरमियान महफिल की जीनत बनेगा। लेकिन इश्क, वाह रे इश्क, एक चीख मारी। मैंने क्या किया, यार ने क्या किया? चीख मार के जमीन पे गिर गए। सहाबा ने जिस्म को हिलाया। सरकार ने फरमाया, इसको मत हिलाओ, एक नाकर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है। मेरे दिल के ख्याल के एहसास ने इसकी जान ले ली है। इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार करो, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और जब जनाजा तैयार हुआ, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। जब जनाजा उठा तो पीछे पीछे अल्लाह के रसूल चल रहे हैं, लेकिन उंगलियां रख करके चलते हैं। साहबा ने कहा, आका इसके जनाजे में आप उंगलियां रख कर चल रहे हैं? आका फरमाते हैं, इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पर आए।